वेलकम बैक टू स्मार्ट मैथ्स बाय सुरभि। आज हम चैप्टर 5.2 का फिगर इट आउट सेक्शन का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। दैट इज क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। इन द लास्ट वीडियो वी सॉल्व क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। Students, today we'll be solving figure it out question number 4 and 5. I'll be doing it step by step with easy explanation. So question number 4 is making 90 degree with sticks and thread, and question number 5 is a parallelogram, a triangle. So let's see. So the problem says we know how to make a 90 degree angle by folding a paper. ये हमने folding a paper में करा था और हमने उसको 90 degree angle भी बना दिया था. Now they say, now suppose you have no paper, okay, and you have only two sticks of equal length and one piece of a thread. So as you can see on the right hand side, so you have two sticks, one of blue and one of orange color, and you have a thread. They are saying इसमें से हम 90 degree कैसे बनाओगे? How do we make a exact 90 degree angle? Just using these two things. So the things we have is two sticks, that same length, one thread, that is a string, no paper, no protector needed for this. Okay, now we'll be seeing that which shape has a diagonal that is 90 degree. Okay, now हमें कुछ key property याद रखनी है. Key property to remember, what is a rhombus? So rhombus is a quadrilateral where all the four sides are equal. Okay, so diagonals bisect each other here at 90 degree. तो हमारी strategy क्या होगी? We are going to build a rhombus using our sticks and thread. So हम देखते हैं कि हम ये कैसे करेंगे. Now हमारा क्या होगा, जो आपके पास two sticks है, okay, so you have to place both the sticks in a cross direction. जैसे आप राइट एंड लेफ्ट देख लो, दे आर डायगोनल एंड वर्टिकली, मैंने इनको एक क्रॉस डायरेक्शन में रख दिया है. यू हैव टू टेक बोथ इक्वल लेंथ स्टिक्स, प्लेस वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर टू फॉर्म अ एक्स, जैसे कि मैंने बना रखा ऑन द राइट हैंड साइड. क्रॉसिंग द पॉइंट एट द सेंटर, द टू स्टिक्स इज इक्वल टू द डायगोनल्स ऑफ द फ्यूचर रॉम्बस. जो भी हम रॉम्बस बनाने वाले हैं वो क्या करेंगे, ऐसे हम क्रॉस बना देंगे. ओके, देन स्टेप 3 विल बी, जो हमारे पास थ्रेड थी, ओके, वी आर गोइंग टू कनेक्ट ऑल द फोर टिप्स विद द थ्रेड. ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, एंड डी को अगेन ए से. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट. नाउ अगर आप ये देखें, वेयर द स्टिक्स क्रॉस, दैट इज द 90 डिग्री, राइट. एक स्टिक यहाँ थी, एक स्टिक वर्टिकली थी, एक डायगोनल थी, तो जहां ये दोनों मीट कर रही है दैट इज अ 90 डिग्री. तो what does this say? The sticks are diagonals to the rhombus. Since it's a rhombus, the diagonals must cross at 90 degree. और हमने ये 90 degree पे है ही, तो equal sticks, all thread sides equal, shape is a rhombus and diagonals meet at 90 degree. So with this, what you have seen, that how to draw a rhombus with the help of two sticks and a thread. Okay. So quickly, how we are going to answer it? We are going to place the two equal sticks in a cross shape, as you can see the first image. Use the thread to connect the four tips forming a rhombus. Second step. The third is the stick cross exactly at 90 degree. Okay. So this is how a rhombus is formed. So cross the equal stick, connect all the four tips of the thread, and sticks cross at 90 degree. So diagonals of a rhombus bisect each other at 90 degree here. Let's go to the next question. The question says, one property of a rectangle is that its opposite sides are parallel. ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल. कैन वी यूज दिस एज अ डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल? क्या हम इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं ऑफ अ रेक्टेंगल दैट अपोजिट साइड्स जिसकी पैरेलल होती है? इन अदर वर्ड्स, इन इज एवरी क्वाड्रिलेटरल दैट हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल ऑटोमेटिकली अ रेक्टेंगल? तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि अगर जिस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी, क्या वो ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल होगा या नहीं होगा. तो लेट्स सी दैट. तो स्टेप 1 विल बी शेप्स विद अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल. तो पहले हमें ये सोचना है कि कौन सी शेप्स होती है. रेक्टेंगल होती है, राइट, एज यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड, इट हैज इट दिस प्रॉपर्टी. ओके, स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी सेम होती है, करेक्ट. एंड पैरेललोग्राम की क्या ये प्रॉपर्टी सेम होती है या नहीं? सो अ पैरेललोग्राम हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, बट इट इज अ रेक्टेंगल, राइट. तो लेट्स सी दैट. स्टेप 2 क्या होगा? वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि मेरे को रेक्टेंगल और स्क्वायर का तो पता है, लेकिन मुझे पैरेललोग्राम का नहीं पता है. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ पैरेललोग्राम. Build a slanted parallelogram. Let's draw a quadrilateral with opposite sides parallel and equal, but where no diagonal is 90 degree. अब 90 डिग्री नहीं बनाने, अगर 90 डिग्री बना दे तो ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा, करेक्ट. तो हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स हम इसके एंगल्स हम 90 डिग्री नहीं बनाएंगे. तो ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल बेस AB, form A slanted line AD. Then you are going to draw DC parallel to AB and BC parallel to AD. So the resulting image will be of a
parallelogram in which AB will be parallel to DC and AB is equals to DC हो जाएगा. Similarly, AD will be parallel to BC and AD will be equals to BC, but all the angles will not be equals to 90 degree. Now, अब हम इसका एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं. What is this counter example? In maths, you have to prove the statement wrong. Okay, and we only have to find only one example where it fails. So this is called the counter example. तो हम क्या करेंगे स्टेटमेंट में every quadrilateral with opposite sides parallel and equal is a rectangle, right? So a parallelogram will be, इसकी काउंटर एग्जाम्पल क्या रहेगा? पैरेललोग्राम विद नो 90 डिग्री एंगल. ओके, तो हम देख लेंगे अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसकी पैरेललोग्राम की करेक्ट है. अपोजिट साइड्स इक्वल है, राइट, ये भी ठीक है. लेकिन क्या ये रेक्टेंगल है? तो वील से नो, दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल, क्योंकि इसके ईच एंगल क्या है? 90 डिग्री नहीं है अभी. अब हम स्टेप 4 क्या होगा? हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे. ओके, सो कंपेयरिंग विल बी, अगर आप यहाँ देखो राइट हैंड साइड पे अपोजिट साइड्स पैरेलल है रेक्टेंगल में भी और पैरेललोग्राम में भी. अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, दोनों में है, रेक्टेंगल एज वेल एज पैरेललोग्राम. डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में भी. लेकिन ऑल एंगल्स 90 डिग्री बस रेक्टेंगल में होते हैं, पैरेललोग्राम में नहीं होते. एंड इज इट अ रेक्टेंगल? यस, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल हो गया, लेकिन पैरेललोग्राम क्या रेक्टेंगल हो सकता है? तो नहीं. So the only thing that makes a rectangle special compared to a parallelogram is all the angles are exactly what? 90 degree. Clear, students? So the opposite sides are parallel and equal is a property of rectangle, but it's not enough to define them uniquely. What is the correct? So students, what is the correct definition of a rectangle? A rectangle is a quadrilateral in which all four angles are equals to what? 90 degree. क्योंकि पैरेलल और इक्वल साइड्स तो पैरेललोग्राम में भी होती है. सो क्वाड्रिलेटरल विद ऑल द फोर एंगल्स 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल. ओके, नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन. क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल. अगर हम पैरेलल एंड इक्वल लिख देंगे वो तो हमारी पैरेललोग्राम भी हो जाती है. सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट, वी आर गोइंग टू जस्ट राइट अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल द फोर एंगल्स एज 90 डिग्री है. तो हमारा क्या फाइनल आंसर होगा? नो, नॉट एवरी क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट साइड्स एंड पैरेलल and equal is a rectangle, क्योंकि हमने इसका काउंटर एग्जांपल करा था, that is a parallelogram. Okay, so opposite sides parallel and equal cannot be a sole definition of a rectangle. We must also add that all the angles are 90 degree. So हमारी correct definition of a rectangle क्या होगी? It's all sides and angles are what? Parallel. Okay, are equal and parallel, and all angles are what? A 90 degree. Clear? So students, तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा इन क्वेश्चन नंबर 4, डू इक्वल स्टिक्स प्लस थ्रेड इज इक्वल्स टू, हम रोम्बस बनाते हैं और उसका डायगोनल क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री होता है. और क्वेश्चन 5 में अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है, बट इट इज नॉट इनफ टू मेक अ रेक्टेंगल. पैरेललोग्राम भी ऐसा ही होता है. तो हमें रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए? 90 डिग्री एंगल्स भी होने जरूरी होते हैं. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. कमेंट में बताओ क्वेश्चन 4 और 5 में से आपको कौन सा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 5.3 which is coming soon. Till then, bye bye.